Good morning. Today's topic will be has and have. First of all, I want to clear the doubt of using of has and have. Okay, has and have, normally it is used in simple present, or you can say present indefinite. Okay, and then it is used in present perfect also. And perfect continuous also we use have as have. But first of all, you should know where to use has and where to use have. Okay, is it clear to you? Are you able to listen to me? Yes, ma'am. Okay. Has is always used with the present tense and singular number. Please note it down. Put the heading as has and have. Then has is used with the present tense singular number and third person also. Present tense singular number has is used with present tense singular number and third person. Okay, what is third person? Now you should know what is third person. Do you know what is third person? Yes, ma'am. Okay, what is third person? Please let me know. Third person is, ma'am, when someone is talking to other. Okay. Again put the heading as personal pronoun. Personal pronoun एक heading डालो. Pronouns are, there are many pronouns. तो जिसमें जो personal pronoun होता है, that is divided into three parts. First person, second person, third person. तो पहले तो heading डाल दो personal pronoun. Then you divide it into three parts. First person. First one is called first person. Who are the first person? First person किसे बोलते हैं? Someone The who is speaker. telling something to other person. The speaker. The speaker is the first person. तो for example, I और we. First person में क्या आ जाता है? I and we. तो I और we के साथ related my और our. ठीक है? Me और us. तो I, we, my, our, we, us. All comes under the first person. I और we होता है. I और we से related my होता है. I से related my, we से related our, वो you are our. फिर I से related me और we से related us. So these are the 6 words which come under the first person. ठीक है? Have you written it? Your camera is not there, mic is not working. How can I teach you, beta? Ma'am, there is a technical issue. Okay, now the next one. Write the next one. Second person. What is second person? Person. Second person means to whom the speaker is talking. Like I am talking to whom? You. तो second person is you. तो second person में क्या आ जाता है? You, your, yours. ये सब second में आ जाता है. ठीक है? तो first person में आ गया I और we. Second person में आया you. And rest of the things come under the third person. अब third heading डालो, third person. Third person में क्या होता है? He, she, it, they, and name. Name और names. सब कुछ आता है third person में. He भी आ रहा है, she भी आ रहा है, it भी आ रहा है, they भी आ रहा है, one name भी आ रहा है, many names भी आ रहे हैं. ठीक है? तो all comes under the third person. Third person means about whom we are talking. First person is the speaker who himself is talking. Second person is the person to whom he is talking. And third person is the person about whom he is talking. Okay, तो third person में क्या आ गया? He, she, it, they, और he से related his,
she से related her, they से related them, okay, and name and names. तो ये सब कुछ आ जाता है थर्ड पर्सन में. तो समझ में आ गया. तो what are the person you saw? It is clear to you. First person, second person, third person. Now about third person. तो has is used with the third person. ये इसको क्लियर कर लो. मुझे मैंने देखा है it is often you have confusion. has लगाना है, have लगाना है. तो has को क्लियर कर लो. has should be added with third person. Like he के साथ has आएगा, she के साथ has आएगा, दे के साथ नहीं होगा क्योंकि हैज में सिंगुलर के साथ हैज आता है. ठीक है. तो दे इज प्लूरल, सो दे के साथ नहीं आएगा. ही, शी, इट और वन नेम. तो हैज इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड प्रेजेंट टेंस. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हैव. HAVE, हैव. हैव किसके साथ यूज होता है? Have is used with first person, second person and plural number. Have. Have, HAVE, have. First person, second person और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है उसके साथ होता है. फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हैव यूज हो रहा है, सेकेंड पर्सन यू के साथ हैव यूज हो रहा है, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल नंबर्स हैं like names, many names, या दे, THEY, दे. हाँ. तो इसके साथ हैव यूज होता है. तो इज इट क्लियर टू यू नाउ? हैज किसके साथ यूज होता है, हैव किसके साथ यूज होता है, ये दोनों क्लियर हो गया. अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और प्रेजेंट टेंस होना है. व्हेन इट इज प्रेजेंट टेंस ओनली देन वी यूज हैज और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. You is a plural now. You is used in both. अगर मैं तुम्हारे अकेले की बात कर रही हूँ तो I will tell you that you are a good boy. And suppose I am talking about the whole class. तब भी मैं बोलूंगी you all are good boys. तो तब you is used in both the thing. सिंगुलर में भी you यूज होता है, प्लूरल में भी you यूज होता है. ओके. तो you is singular and you is plural. Depend on sentence. Huh? It's depend on sentence. It is dependent on the sentence. Yes. When I am talking about the whole class, then I will say you, that is plural. When I will talk about you only, then I will say, then it is singular. समझ में आ गया? तो हैज हैव की क्लैरिटी हो गई. हैज और हैव कब लगता है? पास्ट में नहीं लगता. पास्ट में क्या लगता है? हैज हैव का पास्ट टेंस क्या है? व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ हैज एंड हैव? हैड. हैड में कोई चॉइस नहीं है. हैड सबके साथ हैड लगता है. आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, सबके साथ हैड लगता है. हैड में कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. ऑल्टरनेट नहीं है. बट प्रेजेंट टेंस में ऑल्टरनेट है. प्रेजेंट टेंस एंड ऑल्सो इन फ्यूचर टेंस. विल, हैव, शैल. फ्यूचर में भी क्या होता है? विल, हैज नहीं होता. विल के साथ ऑलवेज हैव लगता है. ओके. ही विल हैव गॉन देयर, और ही विल हैव डन दिस वन, और शी विल हैव, और दे अगर ले लो, दे विल हैव गॉन देयर. तो विल के साथ ऑलवेज हैव, विल और शैल के साथ हैज नहीं होता. तो फ्यूचर टेंस में हैज लगता ही नहीं है. समझ में आ गया? Is it clear to you? Now, the next doubt which I saw in your sentences, that is using of his and her. His और her में भी तुम्हारा बहुत confusion रहता है. Okay, लिख लो. His is always with what? On girls. His is used with the masculine. Masculine means men, boy, men. इनके साथ क्या होता है? his यूज होता है. और her किसके साथ यूज होता है? with the girls, feminine जेंडर में her यूज होता है. masculine जेंडर में his यूज होता है. ठीक है. that should be clear to you. उसमें भी बहुत तुम्हारा confusion रहता है, whether to use his or whether to use her.
आ गया? नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट डाउट? टेल मी योर नेक्स्ट डाउट. दीज टू what I have found. Now tell me your doubts. Doubt, ma'am. मैंने कहा था ना कि एक जगह लिख के रखना. Sometimes I get confusing compound and complex sentence. Compound and complex sentence. Okay. Compound sentence when two principal clause means two full sentences, meaningful sentences are joined with and, but, or, etc. तब क्या होता है? Compound sentence होता है. तो compound sentence में दोनों sentence, दो तीन जितने भी sentence हैं, सब में वो है, सभी प्रिंसिपल क्लॉज है. दैट मीन्स व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? सभी मीनिंगफुल सेंटेंस है. और प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो जिसको वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है. तो दैट इज जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम एंड, बट या और से जोड़ते हैं, देन इट इज कंपाउंड सेंटेंस. लाइक मोहित इज अ गुड बॉय एंड अदर सेंटेंसेस मोहित वर्क्स हार्ड रेगुलरली. तो क्या हुआ? मोहित इज अ गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड रेगुलरली. मोहित इज अ गुड बॉय इज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फुल मीनिंगफुल सेंटेंस है. दूसरा है ही वर्क्स हार्ड रेगुलरली, वो रेगुलरली मेहनत करता है. ये भी पूरा इंडिपेंडेंट, पूरा फुल मीनिंग इट इज गिविंग यू, कंप्लीट मीनिंग, इंडिपेंडेंट सेंटेंस. बट व्हेन आई जॉइन बोथ द इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस विथ एंड, तो क्या हो गया? मोहित इज अ गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड रेगुलरली. तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. दूसरा है मोहित इज अ गुड बॉय बट ही डज नॉट. एक सेंटेंस है मोहित इज अ गुड बॉय, सेकेंड सेंटेंस है ही डज नॉट गिव हिज फुल अटेंशन और फुल कंसंट्रेशन. अगर ये है तो फिर हम इस सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? मोहित इज अ गुड बॉय बट ही डज नॉट गिव फुल कंसंट्रेशन. तो तब भी ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये हमने बट से जोड़ दिया. ठीक है, समझ में आ रहा है? थर्ड सेंटेंस ले लो. ओके, मोहित वॉन्ट्स टू गो टू हिल स्टेशन. ओके, थर्ड वाला भी सुन लो. मोहित वॉन्ट्स टू गो टू हिल स्टेशन इज वन सेंटेंस. सेकेंड इज ही वॉन्ट्स टू गो टू seashore. तो अब क्या होगा? मोहित wants to go to hill station or he wants to go to seashore. तो again both independent sentences are joined with or. So these type of sentences are called it is also known as principal clause. Both independent sentences are called principal clause. तो जब दो या दो से ज्यादा principal clause एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, then it is called compound sentence. Is it clear to you? समझ में आ रहा है? No, ma'am, I not understand the compound. जब प्रिंसिपल क्लॉज तो समझ में आया. प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? When two or more than two principal clause sentences are joined together, then it is called compound sentence. Okay, ma'am. मैम तीन सेंटेंस को जोड़ के बनते हैं. दो तीन जितने भी. अब मैंने दो को बना, यहाँ दो को जोड़ा था, तीसरा भी जोड़ सकते हो. जितने भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग, जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसा कंप्लीट मीनिंग देने वाले जब सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ लेते हैं, देन इट बिकम्स कंपाउंड सेंटेंस. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स का तो तुमने इससे पता ही है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? दो प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, जैसे भी मिक्स्ड अप ऑफ मेनी सेंटेंसेस, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज एक है, बाकी क्लॉजेस जो हैं वो दैट आर नॉट गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग, तो दैट आर डिपेंडेंट क्लॉजेस. तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ बाकी डिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम
कैसे जोड़ते हैं? व्हेन, वेयर, इतना हमने प्रैक्टिस किया था ना। कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल? फिर अपने आप हो जाएगा। इतने सारे तो प्रैक्टिस किए थे हमने। एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। ही इज गोइंग टू द मार्केट। वाई ही इज गोइंग टू द मार्केट? अब उसके साथ जोड़ दो। बिकॉज ही, टू ब्रिंग, टू, अगर टू, अगेन द सेम मिस्टेक, दिस इज वन मोर मिस्टेक। इसको भी लिखो। टू के साथ ऑलवेज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो। टू ब्रॉट नहीं होगा, मैंने बार बार बोलती हूँ। टू ब्रिंग, टू सी, टू वॉच, टू राइट, टू ईट, टू गो। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट इज योर थर्ड मिस्टेक। ठीक है, तो ही वेंट टू द मार्केट फॉर व्हाट? टू ब्रिंग समथिंग। क्या बोलोगे? टू ब्रिंग अ ब्रेड लेने गया है। वेजिटेबल्स, टू ब्रिंग द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगर हम बोले टू ब्रिंग द वेजिटेबल, तो इज इट गिविंग यू फुल मीनिंग? टू ब्रिंग द वेजिटेबल, ये तुम्हें पूरी मीनिंग बता रहा है? नहीं बता रहा है, क्योंकि जब तक हम पहले वाले सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे हमें सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो ही वेंट टू द मार्केट फॉर व्हाट? टू ब्रिंग वेजिटेबल। ठीक है, तो टू ब्रिंग वेजिटेबल क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमारा फर्स्ट क्लॉज, प्राइमरी क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये ऐसा सेंटेंस क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। अब एक और बोलो। Quickly. I get it, but I'm not getting any sentence. कोई कुछ भी बोलो। I watched movie yesterday, which was a horror movie. I watched a movie yesterday, which was a horror movie. तो I watched a movie yesterday is giving you complete meaning, पूरा मीनिंग दे रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दूसरा क्या है? तुम्हें अधूरा मीनिंग दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। विच वॉज अ हॉरर मूवी। विच वॉज मीन्स कौन सा हॉरर मूवी की बात हो रही है? तो ये इट इज नॉट गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज जब तक नहीं बोलोगे, फर्स्ट सेंटेंस जब तक नहीं बोलोगे, सेकेंड सेंटेंस आपको पूरा मीनिंग नहीं बताएगा। आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, यहाँ कौन सी मूवी की बात हो रही है? जिस मूवी को हमने कल देखा था। ठीक है, जिस मूवी को मैंने कल देखा था वो वाला हॉरर मूवी है, दूसरा कोई नहीं है। हम उस पर्टिकुलर मूवी की बात बोल रहे हैं। तो अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्या करोगे? आई एट या आई वेंट टू द बर्थडे पार्टी बिकॉज माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी। मैं बर्थडे पार्टी में गया था। क्यों गए थे भाई बर्थडे पार्टी में? मैं बर्थडे पार्टी में गया था इज गिविंग यू फुल मीनिंग, पर बिकॉज माई फ्रेंड कॉल्ड इन्वाइटेड मी इज गिविंग यू इनकम्प्लीट मीनिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट किया था। तो क्योंकि वाला जो पोर्शन है दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी this one principal clause, so it is called complex sentence. जब एक सेंटेंस अधूरा मीनिंग देता है और एक सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है तो तब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और जब दो सेंटेंसेस पूरी मीनिंग बताते हैं, कहीं इनकम्प्लीट नहीं होता, तब वो वाला सेंटेंस होता है कंपाउंड। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ओके, तो तुम्हारे आज क्या क्या हो गए? एक हो गया हैज हैव का प्रॉब्लम सॉल्व, हैज हैव का क्लियरिटी हो गई। सेकंड क्या हो गया? हिज हर का प्रॉब्लम सॉल्व। थर्ड इज टू प्लस थर्ड फॉर्म।
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, दैट इज टू बी नोटेड। और फोर्थ क्या हो गया, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट डाउट बोलो। Subordinating or non-subordinating sentence. नहीं तो बेटा सबॉर्डिनेट क्लॉज इज सबॉर्डिनेटिंग सेंटेंस नहीं होता। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है, जो तुम्हारा ये वाला सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज लगते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज लगते हैं। को मतलब उसके साथ, को और सब मतलब किसी के अंडर में। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। को मतलब को वर्कर या माई को क्लासमेट, माई क्लासमेट, को मेट या को क्लासमेट, जो मेरे साथ है, जो साथ चल रहा है, दैट इज को। और सब में क्या होता है, एक से नीचे। जैसे क्या होता है, एक है सब इंस्पेक्टर, एक है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है, बड़ा होता है, सब क्या है, उससे नीचे है, ठीक है। तो सब क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और जो दूसरा वाला क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो सब जो है इंडिपेंडेंट के भरोसे रहता है, तो इसी दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आ रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है वही प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट है, ठीक है, सारा वही सेम है। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज मिक्स्ड अप। और बोलो एनीथिंग एल्स। ओके, आई होप यू विल डू इट। और तुम्हारा स्कूल कब से खुल रहा है, फ्रॉम 10th? Okay. Yes, ma'am. Okay, you will have your regular My classes. mother wants to talk to you. Huh? My mother wants to talk to you. Your mother wants to talk to me. Okay, okay. Good morning, ma'am.